Very good morning to you students. Once again, welcome to our class 8 of history. Okay. So before we begin with our today I'm going to start with political science or civics for you. And I'm going to start with the first lecture, that is Introduction to the Parliamentary System. But before that, I would like to discuss with you the answers for the filling the blanks that I given of lesson 2. Okay, so lesson 2 of history, that is Europe and India. So as I had said before, that you will have to always first attempt it with pencil, and then in this class, like in my following classes, I'll be always giving you the answers, after which you can check it and make it into fair. Fair means write it in pen. Okay, so now coming to the first filling the blanks of lesson 2, Europe and India. The first one, in 1453, the city of Dash was conquered by the Ottoman Turks. So which was that? It was the Constantinople. We had discussed this, the Constantinople, and from exam point of view, this is very important. It keeps on coming. रिपीट में आता है, बार बार लगातार रिपीट होकर आता है, तो आप लोगों को ये important mark करना है. Then second one, the industrial revolution began in Dash. कहाँ पे? In England. So A, England is the right answer. Then Dash tried to put restrictions on illegal trade of British. So the answer will be Mir Qasim. Mir Qasim. Okay. Then the fourth one, Leonardo da Vinci became world renowned as a dash, as a painter. See, painter. Though we have seen, जैसे हमने देखा है कि उनमें बहुत सारी महारत हासिल की थी, मैथमेटिशियन भी थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे, आर्किटेक्ट भी थे, लेकिन ज़्यादा उनको प्रसिद्धि और ज़्यादा उनको जाना जाता है एज अ पेंटर. ओके, जैसे मोनालिसा एंड द लास्ट सफर उनकी फेमस पेंटिंग्स रह चुकी हैं. Now, after this, make the following changes, write it in fair, and please do post me before our next lecture. Okay. Now, coming to the civics part, lesson 1, Introduction to Parliamentary System means what? It means that हमारी parliamentary system कैसी है, वो इस lesson द्वारा वो हमें इंट्रोड्यूस करेंगे, वो हमें बताएंगे कि कैसे होता है हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम, किन किन चीज़ों से बनाया जाता है, उनके सिद्धांत क्या है, उनके बेसिक प्रिंसिपल क्या है, फंडामेंटल्स क्या है, ये सारा इस लेसन द्वारा वो हमें बताएंगे. ऑल्सो इन दिस लेसन वी विल नो what is a parliamentary system of government. We will also know in India why we have prime minister, but why there is no prime minister in United States of America. जैसे हम देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट है, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो ऐसा क्यों होता है, वो इस लेसन द्वारा हमें पता चलेगा. We will also know what is the difference between a parliamentary and a presidential system of government. Okay, so now while we are addressing all these questions, we'll go through the lesson. Now, these questions would lead us to conclude that every country has a different form of government. Now, दो हम देखते हैं कि जैसे डेमोक्रेसी में अमेरिका भी बिलीव करता है और हम भी डेमोक्रेसी, इंडिया भी, लेकिन उनके यहाँ प्रेसिडेंट है और हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर हेड होता है कंट्री का. तो उसी तरह ये ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, कहते हैं कि वो हमें इस लेसन द्वारा पता चल जाना है. Okay, now before we go ahead to understand different types of government system, let us get information about main branches
of government. The function, अभी इसके पहले जैसे हम इस लेसन को जानने से पहले, समझने से पहले, हमें क्या होता है, हर चीज के बारे में मेन ब्रांचेस सिस्टम. Okay. So the function of the legislature is to make laws. The executive implements the law and the judiciary provides justice. The functions of these organs, their jurisdiction, and limitations on their part, and the interrelationship between these organs are decided by the Constitution. It is the nature of this interrelationship that determines the system of government adopted in a particular country. Okay, just a moment. Huh? Yeah. So the functions of the legislature is to make laws. The executive implements the law and the judiciary provides justice. The functions of these organs, their jurisdiction and limitation on their part, and the interrelationship between these organs are decided by the Constitution. अब क्या होता है, ये जो लेजिस्लेचर बना है, जो हमारा जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम बना है, लोकसभा राज्यसभा जो बना है, दो हमारी ब्रांचेस, मेन ब्रांचेस जो है, इसमें क्या होता है, ये एक एग्जीक्यूटिव है जो ये लॉ, एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशरी उनकी जो एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है, ये इम्प्लीमेंट करता है, उन लॉज को लागू करते हैं. एंड जुडिशरी जो है वो हमें जस्टिस, न्याय देता है. ओके, अब ये फंक्शंस जो है, ये जो ऑर्गन्स, उसके जो हिस्से होते हैं, ये क्या होती है, उनकी जुरिस्डिक्शन जो होती है, जुरिस्डिक्शन एंड लिमिटेशन जो होती है उनकी पावर में, एंड इनके बीच के जो आपसी रिश्ता होता है, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन. It is the nature of this interrelationship that determines the system of the government adopted in a particular country. अभी जो जुडिशरी के बीच में और एग्जीक्यूटिव के बीच में, इन दोनों के बीच में जो तालमेल होता है, जो एक रिलेशन होता है, वो ये तय करता है कि किसी भी कंट्री का जो है गवर्नमेंट कैसे चलेगा. ओके, these are the two main types of government system that are followed. First is parliamentary system, second is presidential system. Now parliamentary system में क्या होता है? Now parliamentary system of government. The parliamentary system of government developed primarily in England. The English constitution is an unwritten constitution. The governance is carried out in accordance with traditions and customs and conventions. The British Parliament is an institution that has evolved over a period of time. The parliamentary system of government, having its roots in Parliament, is considered as a contribution of England. India has adopted this parliamentary system. अब इंडिया जो है, क्योंकि हम तभी ब्रिटिशरों से हम रूल हुए थे, और जब वो विंस्टन चर्चिल जब छोड़कर, जब लास्ट जो थे उनके रूल करने वाले, हमने उनसे सहायता मांगी कि क्योंकि हमारे पास कोई ऐसे दिमाग में कोई बात थी नहीं, हमें पता नहीं था कि संविधान कैसे बनाया जाता है, कैसे फॉलो करते हैं. तो हमने उनसे, जैसे हमारे लीडर्स थे जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों ने कहा कि आप हमारी सहायता करो, आप हमें ये सब फॉर्म करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन. तो उन्होंने क्या किया, जैसे वो अपने देश को चलाते थे, बस उसी तरह उन्होंने अपनी, जो उन लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम के हिसाब से चला रहे थे, उन्होंने वो पार्लियामेंट्री सिस्टम हमें भी गाइड की, उसने दिया उन्होंने, और इस तरह से इंडिया जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाने लगा. नाउ इसलिए क्या कहते हैं कि, इसलिए अगर हम देखते हैं कि we can see some broad similarities in parliamentary system of England and parliamentary system of India, क्योंकि हम उन्हीं से प्रेरित होकर हमने किया, तो इस वजह से
उनके और हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में काफी समानता हमें दिखाई देंगी. But when we look at an institutional level, the Indian parliamentary system is different in its content. अब जब हम लेकिन एक इंस्टीट्यूशन की तरह से देखते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह से देखते हैं, उस लेवल से जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उनके और हमारे तौर तरीकों में काफी फर्क भी है. Let us understand the characteristics of the Indian parliamentary system of government in India. Okay? अब हमें वो बोल रहे हैं कि इंडियन की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको कैसे जानेंगे वो दिखाएंगे. Let us understand now. First one is what is the first feature characteristic क्या है? First, the parliamentary system is a system of governance. The legislature of central government is known as parliament. The Indian parliament is composed of president, Lok Sabha and Rajya Sabha. अब हमारी फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम की, वो पहली पॉइंट क्या है कि इट इज जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो चलाता है पूरे हमारे गवर्नमेंट को, पूरे कंट्री के गवर्नमेंट को. एंड उसके बाद जो वो लेजिस्लेचर किसका होता है, जो सेंटर पे गवर्नमेंट होता है. आज सेंटर पे मेन सबकी गवर्नमेंट किसकी है, बीजेपी की है. तो उनके हिसाब से जो होगा वो सेंटर करेंगे, वो गवर्नमेंट सेंटर में होगा पार्लियामेंट्री सिस्टम में, और इसे कहते हैं पार्लियामेंट. ओके. देन आगे जाकर इंडियन पार्लियामेंट जो है वो तीन हिस्सों में, तीन हिस्से उसके बनते हैं. कौन से तीन हिस्से? एक होता है प्रेसिडेंट, देन लोकसभा एंड राज्यसभा. नाउ members of the Lok Sabha are directly elected by people. जो हम देखते हैं अभी ये जो इलेक्शंस होते हैं, मेन लोकसभा इलेक्शंस का मतलब क्या होता है, यानी हम डायरेक्टली अपने कैंडिडेट को, अपने लीडर्स को चुनते हैं. हम चुनते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा डायरेक्टली. तो ये डायरेक्ट लोकसभा इलेक्शंस होते हैं. द नंबर ऑफ मेंबर्स इन दिस हाउस इज फिक्स्ड. अब इसमें जो मेंबर्स है, इस लोकसभा के मेंबर्स जो है उसमें फिक्स्ड, उन्होंने एक फिक्स्ड नंबर दिए, इतने ही नंबर्स हो सकते हैं, ना इससे ज्यादा ना इससे कम. ठीक है. देन elections to Lok Sabha are held at regular intervals. All political parties contest these elections. The party which gets more than half of seats is considered as majority party. The majority party forms the government. अब हम देखते हैं जैसे लोकसभा में दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है कि जैसे हम देखते हैं हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, तो हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल. ये नहीं कि 6 साल बाद, 8 साल बाद हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं, ऐसे नहीं होता है. हर 5 साल बाद उनको इलेक्शन करने ही होते हैं. एंड उसमें क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है मेन, जैसे हम देखते हैं कांग्रेस है, बीजेपी है, आप पार्टी है, या और कोई ऐसे जनता दल है, ये सारी पार्टीज होते हैं, ये उनमें हिस्सा लेते हैं इलेक्शन में. और उनमें जो सबसे ज्यादा, यानी 2/3 से भी ज्यादा वोट जिसको मिलती है, मेजोरिटी जिसकी, आधे से ज्यादा वोट जिस पार्टी को मिलता है, उनकी मेजोरिटी होकर वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है. जैसे अभी फिलहाल बीजेपी की गवर्नमेंट आई है क्योंकि उनको सबसे ज्यादा वोट्स मिले थे, आधे से ज्यादा वोट्स. ठीक है. Then sometimes when no party gets a clear majority, some parties come together to form a majority and they can establish a government. This kind of government is known as a coalition government. अब जैसे हम देखते हैं महाराष्ट्र में जब किसी भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं थी, जैसे कांग्रेस को थोड़े वोट्स थे, फिर शिवसेना को थोड़े वोट्स थे, एनसीपी के थोड़े वोट्स थे, तो सारों ने क्या किया, इकट्ठे आ गए और फिर उन्होंने जो है वो पार्टी फॉर्म की और गवर्नमेंट बनाई. तो उद्धव ठाकरे जी की उन्होंने गवर्नमेंट बनाई. तो इस तरह से जो होते हैं, जो जिस अगर वो कहते हैं इस पॉइंट में कि किसी को भी मेजोरिटी ना मिले, तो जो 4-5 पार्टियां हैं वो इकट्ठे आकर एक फॉर्म होते हैं, एकजुट होके आते हैं और गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं. देन इन दिस वे कैंडिडेट्स directly elected by people become members of legislature and the party in majority gets a chance to form the government. अब इस तरह से क्या होता है
जो कैंडिडेट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल है, दे बिकम मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर। अब वो लोकसभा के जो हम देखते हैं ना फिक्स्ड मेंबर्स बनते हैं, तो ये जो लेजिस्लेचर के फिक्स्ड मेंबर्स में से एक बनते हैं, जो हमारे चुने हुए लीडर्स होते हैं। एंड द पार्टी इन मेजोरिटी गेट्स अ चांस टू फॉर्म गवर्नमेंट। तो अभी हमने यहाँ कौन कौन से कितने कितने पॉइंट्स डिस्कस किए पार्लियामेंट्री सिस्टम के। फर्स्ट हमने देखा, फर्स्ट पॉइंट कि हाउ इट इज फॉर्म्ड, दैट इज प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा का मिलकर एक ये फॉर्म होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। देन हमने देखा कि लोकसभा पीपल इज डायरेक्टली इलेक्टेड by the people and members of the house is fixed. Then third point we have seen that Lok Sabha is elections are held at regular intervals and all parties are coming together to contest the elections and the majority party forms the government. Fourth point may we discussed sometimes that when no party gets a clear majority, then some parties come together and they form together a government. That is called a कोएलेशन। कोएलेशन मीन्स कमिंग टुगेदर। को, जब को वर्ड आता है, जैसे आप लोग कोएड स्कूल में पढ़ते हो, कोएड का मतलब क्या होता है, जहाँ गर्ल्स भी है बॉयज भी है। को का मतलब होता है साथ में, इकट्ठे। तो जैसे ये सारे पार्टीज इकट्ठे आते हैं और गवर्नमेंट फॉर्म होती है, तो उसका नाम होता है कोएलेशन गवर्नमेंट। देन वी लर्न दैट कैंडिडेट्स इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल become members of legislature and the party in majority gets a chance to form the government. Now coming to the seventh point, the leader of the majority party becomes the prime minister. He or she elects the candidates for ministerial positions from among his or her colleagues. अब जैसे हम देखते हैं कि जो मेजोरिटी पार्टी है उन्हीं में से कोई हमारा प्राइम मिनिस्टर बनता है जो उनका है। एंड प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने पार्टी के अपने सहयोगी के अपने जो अपने उनको जो हेल्प करेंगे उनके पार्टी से जो है उनको उन लोग ऐसे मिनिस्टरियल पोजीशंस देंगे। जैसे अगर हम देखते हैं कि आज नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर है, तो उन्होंने जैसे अमित शाह जी को होम मिनिस्टर बनाया, राजनाथ सिंह को उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर बनाया, या उन्होंने जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने अपने पार्टी से चुना। तो इस तरह से वो अपने पार्टी से मिनिस्टरियल पोजीशंस के लिए अपने कलीग्स को या अपने पार्टी मेंबर्स को चुनते हैं। ओके, देन द लास्ट पॉइंट इज द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स chosen by the prime minister together forms the executive in the parliamentary system of government. In parliamentary system, the executive has a dual responsibility. And which is the dual यानी दो responsibility। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उसके दो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कौन से? एज एन एग्जीक्यूटिव दे हैव टू इम्प्लीमेंट लॉज। फर्स्ट उनको एग्जीक्यूटिव जब वो होते हैं तो उनका मेन इम्पॉर्टेंट क्या पॉइंट होता है कि उनको पहले तो लॉज बनाने पड़ते हैं, इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं, यानी लागू में लाने पड़ते हैं। एंड सेकेंड इज व्हाट, as they are the members of the legislature, they have to fulfill responsibilities of the legislature। यानी कि सिर्फ वो हमारे जो लॉ है वो ये लागू करेंगे, लेकिन उनको वो जो एज अ लेजिस्लेचर जो मेंबर्स है उनको अपनी कोई जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उनको फुलफिल करनी पड़ती है, निभानी पड़ती है। The Prime Minister and the Council of Ministers is responsible to the legislature for all their actions and policies. It means that the Council of Ministers has to work with the legislature. It is for this reason that the parliamentary system is known as the responsible system of government. Now this will be asked in your question and answer. So why, how the question will be, why is parliamentary system known as responsible system of government? So what your answer will be, the prime minister and the council of ministers is responsible to the legislature for all the actions and policies। यानी प्राइम मिनिस्टर और जो उनके जो मिनिस्टर्स उन्होंने चुने ये रिस्पॉन्सिबल होंगे
सारे नीतियां और उनकी सारी एक्शंस को वो जिम्मेदार होंगे। इट मीन्स ऑल्सो दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये जो काउंसिल है, जैसे हमारी होम मिनिस्टर है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, हमारी दूसरी जो मिनिस्टर्स है, ये किसके लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसके लिए जिम्मेदार होंगे? ये एक्शंस एंड पॉलिसीज के लिए। इस वजह से it is for this reason that the parliamentary system is known as responsible system of government। ये कोई भी मुंह उठा के नहीं आ सकता, या कोई भी मुंह उठा के चलो आज से ये नीतियां बनाएंगे, आज से ये लॉ बनाएंगे, ये लॉ एंड ऑर्डर, ऐसे नहीं कर सकते। हर चीज जो वो करेंगे, हर उनके जो एक्शंस होते हैं उसके लिए वो जिम्मेदार होंगे कि उनको सही तरीके से निभाने के लिए। ठीक है, तो इस वजह से उसको बोलते हैं कि ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, जिम्मेदारी वाला सिस्टम है गवर्नमेंट का। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर या उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसी वजह से जिम्मेदार लोग माने जाते हैं, इंपॉर्टेंट लोग माने जाते हैं। Another distinct characteristics of parliamentary system of government is collective responsibility. Decision taken by a ministry department is considered as decision of the government। ठीक है, जैसे मैंने अभी कहा कि जैसे अगर एक होम मिनिस्टर ने फैसला लिया है, या एक फाइनेंस मिनिस्टर ने, या एक डिफेंस मिनिस्टर ने लिया है, तो ये सिर्फ उनका एक इंडिविजुअल यानी एक अकेले का डिसीजन नहीं माना जाएगा। ये माना जाएगा कि इन्होंने आपसी सहमति से डिस्कस कर प्राइम मिनिस्टर से, फिर उनकी भी यानी उनका भी इस पे मोहर लगा हुआ है। ये नहीं कि सिर्फ डिफेंस मिनिस्टर ने अपने हिसाब से जो चाहिए उन्होंने वैसे किया है, अपनी मनमर्जी नहीं चलाई है। इसका मतलब ये होता है कि जो डिसीजन इन्होंने लिया है वही प्राइम मिनिस्टर का भी डिसीजन है, और वही उनकी पूरी जो काउंसिल ऑफ डिसीजन है उनकी जिम्मेदारी है। ओके, so in the next two chapters we will see with examples how the principle of collective responsibility is brought into practice। अब जो बाकी के दो चैप्टर कहते हैं जो है वो यही बात को बताएंगे कि कैसे उनकी सहमति से कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कि वो सारी चीजें जो है लॉज एंड ऑर्डर को उनको कैसे वो लागू करते हैं। सबकी जिम्मेदारी होती है, ये नहीं कि डिफेंस मिनिस्टर ने कहा तो ऑब्वियसली फाइनेंस मिनिस्टर की भी उसमें हामी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक अगर मानो हमें कोई वेपन्स खरीदने हो, कहीं से इंपोर्ट करने हो वेपन्स, तो सिर्फ डिफेंस मिनिस्टर के कहने से नहीं होगा, फाइनेंस मिनिस्टर को उसके लिए फाइनेंस भेजना होगा। तो ठीक, अब जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो बिना प्राइम मिनिस्टर के सहमति से नहीं करेगा, तो डिफेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर दोनों को जाके प्राइम मिनिस्टर से बात करनी होगी कि ये हमारे डिसीजन है। जब वो साथ में बैठ के मिलेंगे तब देखेंगे कि हम ये हमारे देश के लिए अच्छा है कि नहीं, इसमें पैसे इतना निवेश करने के लिए हमारे पास उतना फंड है कि नहीं, या हम वो किस तरह से करेंगे। ये चीजों के लिए क्या होता है, उनकी आपसी सहमति और मिली जुली क्या बोलते हैं उसको, एक मिली जुली डिसीजन के साथ उनको ये करना पड़ता है। तो ये उनकी आपसी जिम्मेदारी है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, सो देन इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम the executive is dependent upon the confidence of the legislature in them. This means that the council of ministers remains in power till it enjoys the support of confidence of legislature. If the legislature feels that the executive does not work in accordance to its wishes, it removes the executive from power by passing a no confidence motion against the executive. No confidence motion is an effective tool of keeping check over the executive। अब जैसे लेकिन ये नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं है कि सारा डिसीजन और मनमानी कि प्राइम मिनिस्टर करेगा, ऐसे भी नहीं है। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है कि भले ही वह एग्जीक्यूटिव पे डिपेंडेंट होता है कि हर चीज लेजिस्लेचर में करने के लिए, लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो सिर्फ तब तक पावर में रह सकती है जब तक उनको वो लेजिस्लेचर यानी लोकसभा में सबकी सहमति, सारे मेंबर्स की सहमति है। अगर उनमें मेजॉरिटी की सहमति नहीं है कि ये
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कर रहे हैं वो सही काम नहीं कर रहे हैं या वो सही ढंग से नहीं, तो वो उनको नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी हमें इनमें कोई भरोसा नहीं है, कॉन्फिडेंस ही नहीं बचा है, हमें इनमें कोई भरोसा नहीं बचा है, ये कहकर ये उनकी सरकार को पूरी तरह पलट कर सकती है उनको। तो इस वजह से क्या होता है, इट इज एन इफेक्टिव टूल ऑफ कीपिंग चेक, यानी इसका मतलब क्या होता है, उन्हें भी ये डर लगा रहेगा कि अगर हम अपना काम ठीक से नहीं करेंगे तो हमें निकाला जा सकता है नो कॉन्फिडेंस मोशन द्वारा। तो इस वजह से वो अपना काम सही तरीके से करते हैं। ओके, इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द लेजिस्लेचर इज अ सुप्रीम इंस्टीट्यूशन, elected representatives of people express demands and aspirations of common people in the parliament। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है, लेजिस्लेचर को सुप्रीम इंस्टीट्यूशन माना जाता है, एंड इस वजह से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो, क्योंकि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हम उनको चुन के लाते हैं, तो इस वजह से लोगों की जो डिमांड्स है, उनकी जो विशेष होती है, उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी जो भावना क्या है या उनके क्या नीड्स होती हैं, इन सबको वो कॉमन पीपल को पार्लियामेंट में रखते हैं। द पार्लियामेंट डिसाइड्स अपॉन इश्यूज ऑफ पब्लिक वेलफेयर। मानो हमारे पास कोई तकलीफ होती है तो हम तो डायरेक्टली नहीं जा सकते ना, एक एक करके नहीं जा सकते। 150 करोड़ की आबादी जो हमारी है, एक एक 150 करोड़ जाके प्राइम मिनिस्टर को रोज बोल नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जिन्हें हमने चुन के लाया, हम सारी बातें उनको बोलते हैं और वो लोकसभा में जाके वही बात हमारी प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने रखते हैं। ओके, सिंस इट इज द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यानी क्योंकि वो घर ऐसा घर बनता है जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, इसलिए ऑफ पीपल एंड एक्सप्रेसेस सोवेरेनिटी ऑथोरिटी ऑफ पीपल, इट इज कंसिडर्ड अ सुप्रीम बॉडी। क्योंकि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ छोटी मोटी नहीं होती है, वो सारे देश के लोगों को, वो सारे अपने क्षेत्र के लोगों को, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको, क्योंकि वो दर्शाते हैं वहां पे, इसलिए वो एक बहुत ही उत्कृष्ट काउंसिल माना जाता है, टीम मानी जाती है, सुप्रीम बॉडी मानी जाती है। ओके, so why is it called a supreme body if the question comes? Because the parliament decides upon issues of public welfare, and since it is the house of representatives of people and expresses sovereign authority of the people, it is considered as the supreme body. So यहाँ तक हमारा आज का ये लेसन हम कंप्लीट करेंगे, आज का लेक्चर। In the next lecture we will know why did India adopt a parliamentary system of government? क्यों इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया है, ये हम अगले इसमें देखेंगे लेक्चर में। ओके, so we'll end for today. Thank you students for hearing the lecture, and please do complete your notes and all your homework and post it to me as early as possible. Okay, thank you students.